Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. Now we will see what type of search algorithm we can use. So the search algorithm is broadly divided into two parts, that is uninformed search and informed search, which is also called blind search and heuristic search. Okay, so these are the two category we are having for the search algorithm. So in informed search or heuristic search, we are having best first, A star, AO star. There are so many other algorithms. And in uninformed or blind algorithm, we are having breadth first, uniform cost, depth first, depth limited search, iterative deepening, depth first search, bidirectional search. These are the algorithm we are having under uninformed search. Okay. Now, first of all, we will see this category uninformed search. And before going with this category, we require to see why this is called uninformed. Okay, so uninformed, the term itself says that uninformed means that particular problem is not having any domain knowledge. Okay, first of all, okay, domain knowledge means उसके आसपास क्या हो रहा है, मेरा गोल कहीं कौन सी डायरेक्शन में है, उसका लोकेशन क्या है, नथिंग नोन बाय द सर्च एल्गोरिदम. ठीक है, तो एल्गोरिदम जब स्टार्ट होता है तो उसके पास कोई प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन नहीं है. सो वॉट एवर द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सर्च इज हैविंग, दैट इज ओनली इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ट्रैवर्स द ट्री. ठीक है, पूरे ट्री को कैसे ट्रैवर्स करना है, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई माई लीफ नोड. ठीक है, और उसका ऊपर का नोड क्या है, ठीक है, और उसका पेरेंट नोड क्या है और लीफ नोड क्या है, वो उसको पता होना चाहिए. एंड वेदर दिस वट एवर द करंट नोड आई एम हैविंग, इट इज गोल नोड और नॉट. ठीक है, इतना उसको सिर्फ समझ में आ रहा है. क्या समझ में आ रहा है उसको 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 सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि उसके पूरे ट्री को ट्रैवर्स करना है. ठीक है, एंड वट एवर द whenever traversing a tree, so okay, now this is the tree, this is the node, this particular node is having 3 leaf nodes. Now when this particular leaf node becomes node, then this again it is having few more leaf nodes. तो उसको सिर्फ लीफ नोड और उसके पेरेंट नोड के बारे में समझ में आता है जैसे जैसे वो ट्रैवर्स करता है, पहले से नहीं पता है. ठीक है, और उसको ये समझ में आता है कि दिस इज गोल स्टेट और नॉट. ओके, it means it is always again testing for the goal, and if it is not there, and then the search again expand. Okay, so that is what the uninformed algorithm knows. Okay, now this uninformed search applied a way in which search tree is searched without any information, as I told you about the search space, like initial state operator उसके पास है and test for the goal. तो अब इसको दो चीज क्या प्रोवाइड करनी है हमें. सबसे पहले तो इनिशियल स्टेट ऑपरेटर मींस वी रिक्वायर्ड टू गिव द रूट नोड. विदाउट रूट नोड एनी सर्च टेक्निक विल नॉट वर्क. Clear? So now here what we require to give as an input the initial state, or you can say root node, and whatever the goal टेस्ट इज गोल स्टेट इज. सो आपका गोल कौन सा नोड है वो भी तो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना वो क्या सर्च करेगा. ठीक है, तो दो ही चीज इसको पता है सिर्फ, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लाइंड सर्च आल्सो. उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं. ठीक है, सो नाउ to achieve this type of search technique, we are having, there are 5 main, as I told you, these are the 5, but in your course you are having these 2 techniques, breadth first search and depth first search. ये दो टेक्निक आपको इन डिटेल आप कोर्स में है विथ न्यूमेरिकल. ठीक है, सो मे बी पॉसिबल कि इसका न्यूमेरिकल मे बी क्या उसका न्यूमेरिकल ही आएगा ऑफ कोर्स. तो उसका न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में आएगा, थियरी नहीं आएगा. थियरी भी आ सकता है पर थियरी के साथ न्यूमेरिकल भी एग्जाम में है. क्लियर? सो दिस आर द 2 algorithm you are having in your course. Okay, so now we will start with the breadth first search. ठीक है, तो breadth first search जैसे the term itself says that it will always do its search breadth wise. ठीक है, so breadth wise search कैसे होगा. तो algorithm searches breadth wise in a tree or graph. ठीक है, algorithm start from root node. तो यहाँ पे root node कौन सा है, this S node. ठीक है, now ये जो root node है, this root node is having 2 what leaf node.
and this leaf node are node A and B. Now, if we talk about the level of the tree, okay, then root level is having 0 level. Then you traverse from S to B or S to A, then the level will become 1 because you have traversed this one edge. This is called node vertices or edge. Clear? So ये एक एज को आपने ट्रावर्स किया, दैट्स वाई लेवल 1. अगर आप यहाँ पे सी डी ई एफ को ट्रावर्स करते हो, देन द लेवल इज बिकम 2. क्लियर हुआ? ठीक है. लेवल किस हिसाब से होता है? हाउ मेनी डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड. सो यू हैव ट्रेवल्ड लेट्स से 2 एज डिस्टेंस मींस द लेवल इज 2. इफ यू हैव ट्रेवल्ड 3 लेवल डिस्टेंस मींस आपने कितना ट्रेवल किया है? 3. क्लियर हुआ? सो लेवल समझ में आ गया सबको. हर एक ट्री का क्या होते हैं पार्ट? तो ट्री के पार्ट होते हैं नोड एंड ये एज. ठीक है. अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की तरह देखोगे तो दिस इज व्हाट द वर्टाइसेस एंड एज आर. ठीक है. बट इन एआई इट इज कॉल्ड रूट नोड एंड चाइल्ड नोड और लीफ नोड. क्लियर? ठीक है. So the breadth search algorithm is an example of general graph search algorithm, you can say. But here the most important thing is what? In breadth search algorithm, it implements FIFO-Q data structure. Now, what is the full form of FIFO? Yes, anyone? What is the full form of FIFO? First in, first out. Very good. So first in, first out. It means whatever the queue we are come across at railway station. ठीक है. तो वो जो क्यू है उसमें क्या होता है? जो पहले टिकट के लिए लाइन में लगता है वही लाइन से सबसे पहले बाहर आएगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द FIFO स्ट्रक्चर. नाउ इन दिस FIFO स्ट्रक्चर यू आर हैविंग 2 मेन एलिमेंट्स. नाउ which are these 2 main elements in the FIFO structure? Yes, you have already learned this data structure right in the first semester. So 2 main elements क्या है FIFO के? Yes, anyone? Root node and parent node. I am talking about Q. Yes, very good, Akhilesh. That is front and rear. Okay. So now front node is always for the अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रंट जो इंसर्शन के लिए कौन सा नोड होगा और उसमें से डेटा डिलीट करना है तो कहां से डिलीट होगा वो आपको बताना है. ठीक है. सो इंसर्शन के लिए कौन सा नोड होगा? डिलीट फ्रॉम फ्रंट. वेरी गुड. एंड इंसर्शन फ्रॉम रेयर. वेरी गुड अखिलेश, सोनिया. सो हर बार हमें क्या करना है? यहाँ पे जो रेयर है वहां से इंसर्शन होगा. मतलब कि जब हम जो जस्ट विजुअलाइज द बुक ट्रेन टिकट बुकिंग क्यू. ओके, उसको विजुअलाइज करो. जब नए पैसेंजर आते हैं तो ऑलवेज एंड में खड़े रहते हैं टिकट के लिए, और जब वो क्यू में से कोई बाहर निकलता है तो कहाँ से बाहर निकलेगा? फ्रंट में. ठीक है. जो पहले आया है वो पहले बाहर जाएगा. ठीक है. तो समझ में आ रहा है सबको? इंसर्शन कहाँ से होता है? लास्ट में. और डिलीशन कहाँ से होता है? फर्स्ट से. क्लियर हुआ ये डेटा स्ट्रक्चर सबको? एनी प्रॉब्लम विद दिस FIFO-Q's data structure? Okay, so now this breadth first search is depending on this particular data structure. Now how this will work? So we will see the algorithm of this best breadth first search algorithm. The step 1 place the root node inside the queue. So now we all the time we require to start any type of search with the root node, of course. ठीक है. So place the root node inside the queue. Now visualize that के one first passenger जो टिकट बुकिंग की लाइन में खड़ा है. ठीक है. फर्स्ट जो मतलब सुबह 3 बजे अगर आ गया है और खड़ा है वहां पे. ठीक है. सो वो अपना रूट नोड है और उसने वो लाइन में खड़ा है. ठीक है. इफ द क्यू इज एम्प्टी देन स्टॉप एंड रिटर्न. ठीक है. तो अगर क्यू एम्प्टी है तो कुछ करना ही नहीं है, उसको वहां से डिलीट हो जाना है और वहां पे ही आपका प्रोसेस स्टॉप हो गया. Now, if the front node of the queue is a goal, तो भी तो stop हो जाना है. ठीक है. So now, if there are A to Z passenger in the queue and you are searching for, let's say, F element. Okay, तो F element जैसे ही आता है
डिलीशन के लिए, तो वो आपका क्या हो जाता है, गोल स्टेट, तो वहां से भी आपको क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो गोल स्टेट आता है तो भी स्टॉप हो जाना है, अगर क्यू में कुछ है ही नहीं तो भी तो स्टॉप हो जाना है, ठीक है, बिकॉज डेटा इज नॉट देयर। ओके, सो इन दिस टू स्टेप्स वी कैन कम आउट फ्रॉम द लूप। ओके, देन आफ्टर रिमूव द फ्रंट नोड। अब आपको क्या करना है, जब आप फ्रंट नोड को रिमूव करते हो तो उसको प्रोसेस करना है टू चेक द गोल टेस्ट and find and then after you require to find all the neighbors that are ready state and then place them inside the queue, ठीक है। तो आप जिसको भी बाहर निकालते हो उसके लीफ नोड को चेक करो और सबको रेयर एंड से या लास्ट में ऐड कर दो, ठीक है। और यही प्रोसेस आपको बार बार करते रहना है, and during that you require to check the goal state every time. So इसी तरह से go to step 3, then process again, go to step 3, process again likewise, ठीक है। तो अगर हम इस एल्गोरिथम को फंक्शन की तरीके से देखें तो फंक्शन की तरीके से एल्गोरिथम क्या होगा, put the root node on a tree on a queue, then while queue is not empty, तभी तो हमें काम करना है। remove node, if the node is goal then return, अगर नोड जो है वो गोल नहीं है देन फाइंड आउट ऑल द चाइल्ड्स एंड पुट दैट चाइल्ड आल्सो इन द क्यू। ओके, सो ये क्यू में कहाँ जाएगा, लास्ट में, ठीक है। और अगर आपको डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो कहाँ से रिमूव होगा, फर्स्ट से। क्लियर हुआ सबको ये? अगर नहीं भी क्लियर होता है तो हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। नाउ ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एडवांटेज क्या है अगर हम ये करते हैं तो एडवांटेज ये है कि इन दिस ब्रेथ सर्च एल्गोरिथम व्हेनेवर वी आर ट्रैवर्सिंग, हाउ वी आर ट्रैवर्सिंग, सो फर्स्ट वी विल गो फॉर एस, देन हम ए और बी को करेंगे, फिर ए के नीचे के और बी के नीचे के जो भी लीफ नोड है उसको हम सर्च करेंगे, फिर ई के नीचे के और एफ के नीचे के, मीन्स हम लेयर वाइज सर्च कर रहे हैं। पहले हम 0 लेवल को पूरा सर्च कर लेंगे, फिर 1 लेवल में ए बी है उसको सर्च कर लेंगे, फिर हम सेकेंड लेवल में जो 4 एलिमेंट है उसको सर्च करेंगे, देन थर्ड। इट मीन्स व्हाट, वी विल सर्च ईच एंड एलिमेंट एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि ये वाला जब हम ये वाला जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये एलिमेंट रह गया, ऐसा नहीं होगा। वी विल ट्रैवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट इन दिस प्रोसेस। क्लियर? ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, इट विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ कोर्स। अगर हम सारे का सारा डेटा ट्रैवर्स कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कभी ना कभी तो मिलेगा। द थिंग इज दैट कि वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमें पूरे के पूरे ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, दैट इज द वर्स्ट केस। Okay, maybe possible sometimes you are getting your goal fast and sometimes you are getting your goal where you search a whole tree. Okay, so that is also possible, but you will get the solution, that is for sure. Okay, so that is what the advantage of this algorithm. Okay, then and if there are more than one solution for a given problem, then BFS will provide a minimum solution. Minimal solution is also called optimal solution. Optimal or you can say efficient solution. How? Again we will go for the tree. क्यों optimal solution मिल रहा है यहाँ पे? Because it is searching breadth wise. Okay. So breadth wise search करने में क्या है, आपको जल्दी से जल्दी कम लेवल पे डेटा मिल जाएगा। वर्स्ट केस ऐसा है कि अगर डेटा जो है वो लास्ट वाले लेयर पे होगा तो सर्च ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर सॉल्यूशन में फर्स्ट मतलब जितने मिनिमम लेवल पे डेटा मिल रहा है वो पहले सर्च हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। डिसएडवांटेज क्या है, मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यू रिक्वायर टू सेव ऑल द स्टेट इन द मेमोरी। ओके, तो ये ऑफ कोर्स अगर मेमोरी इतनी ज्यादा है तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। सो टाइम इज आल्सो वन ऑफ द कंस्ट्रेंट एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, ठीक है। सो नाउ वी एग्जैक्टली सी हाउ दिस विल वर्क, ठीक है। सो नाउ हियर वी आर हैविंग लेट्स से 2 level, this is 2 level tree where the root node is A, then we are having level 1 where B and C 2 nodes are there. Now this is the leaf node of A, and then in B, if we talk about B, then B is having again 2 leaf node D and E, and C is having F and G. Clear everyone?
So this is what the B, the given tree we are having. Now again think about the FIFO queue. हमें FIFO data structure को use करना है. We require to start with the root. This is what the first step of this algorithm. Okay, so first step के हिसाब से A हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमारे data structure में क्या आएगा? A. Then after remove the front element and add its neighbor. याद आया सबको? नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिमूव फ्रंट एलिमेंट एंड ऐड इट्स नेबर. सो नाउ ए का नेबर कौन है? तो ए के नेबर कौन कौन है? बी एंड सी. ओके, सो नाउ वी विल रिमूव दिस ए एंड वी विल ऐड बी एंड सी फ्रॉम रेयर. अभी रेयर एंड मतलब पीछे से हम उसको ऐड कर रहे हैं, आगे से डिलीट कर रहे हैं. ठीक है, और एक आगे जाएंगे तो समझ में आएगा. So now we are having B and C in the memory. Okay. So now in B and C again we require to delete what? B. So remove this B from front and add its neighbor from rear. So add its neighbor. B के neighbor कौन है? D and E. वो आपको कहाँ से ऐड करने हैं? पीछे से. तो इसको निकाल दिया और C के पीछे हमने D और E को ऐड कर दिया. ठीक है, क्लियर हुआ? Then after again now we require to check, every time we require to check for the goal state. ठीक है, और यहाँ पे हमारा गोल है G. ठीक है, तो गोल स्टेट को आपको ध्यान में रखते हुए जाना है और एवरी टाइम जब आप रिमूव करते हो तो गोल चेक करना है. यहाँ पे A रिमूव किया, गोल चेक किया, गोल इज नॉट मेट, देन वी एक्सपांडेड. Then B and C में से B delete किया, so B is goal, no, B is not goal, तो again expand. D और E ऐड किया, अब C को रिमूव करना है और उसके जो चाइल्ड है उसको ऐड करना है. तो C को रिमूव किया, चाइल्ड है F and G, उसको ऐड किया रेयर से और फ्रंट से C को निकाल दिया. क्लियर हुआ सबको ये? अब आपको क्या करना है? D को निकालना है. There is no neighbor, तो कुछ भी ऐड नहीं करना है और वो गोल भी नहीं है. E उसको भी निकालना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि उसके कोई नेबर नहीं है, बट वो गोल नहीं है. F उसको भी निकालेंगे, चेक करेंगे गोल है, गोल नहीं है. Then G again. So G is my goal state. So now G is the goal. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आपको रिवर्स प्रोसेस करना है. रिवर्स प्रोसेस में क्या है? जब आपको G मिल जाता है तो G का पेरेंट कौन था? तो G कब ऐड हुआ था? जब हमने C को निकाला था. समझ आया सबको? G को हमने तब निकाला जब C को निकाला था. G को तभी ऐड किया. तो G का पेरेंट है C. C का पेरेंट कौन है? तो C तब ऐड हुआ था जब हमने A को निकाला था. So this is the path A C G for the goal state G. क्लियर हुआ सबको ये? Any problem with this algorithm? Okay, so next आपको खुद करना है. यहाँ पे you can write down in the chat box each and every step. Okay, so we will go for the another example. समझ में आया सबको? First of all, what we require to do, we will start with the root, and then after we will remove the element and we will add its neighbor. Then remove, add, and every time when we remove, we require to check the goal. If it is goal, then stop. अगर वो गोल है तो स्टॉप हो जाना है. स्टॉप होने के बाद उसके पेरेंट चेक करते जाना है जो जो रिमूव किए हैं, एंड दैट विल बी द पाथ. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है. तो नाउ वी विल डू दिस वन. Implement the above algorithm of BFS by taking the following example. ठीक है, where F is the goal state and A is your root node और starting node. Clear? तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर में क्या जाएगा? We are implementing FIFO Q data structure. Yes. A. Just write down in your chat box, everyone. A. Very good, Omkar, Nisha, Sonia, Akanksha. So A is there in the data structure. Okay.
Very good, Shubham, Taushif. Now, after A, what you require to do? What will be my second step? So now you require to delete A. Okay, but whenever you are deleting any node, you require to add its neighbor. Clear? Okay, so यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? Very good. So B and C, its neighbor. So remove A and add B. Now we are having B and C in the data structure. Okay, so now what will be the next step? Yes, anyone? Next step क्या करना है? Remove B and add D. Very good. Remove करना है हमको B और D को add करना है पीछे से. ठीक है? So अब हमारे डेटा स्ट्रक्चर में क्या बचेगा? हमारे डेटा स्ट्रक्चर में था B and C. B को निकाल देना है और D को ऐड करना है. वेरी गुड. सो C and D दिस विल कम एज अ डेटा. ठीक है, अब आपको क्या करना है? C and D हो गया. अब आपको करना है रिमूव C. वेरी गुड. एंड देन यू रिक्वायर टू ऐड द नेबर, दैट इज E. Okay, so now what will be the data end of the day? R, there is no R. DE. Okay, ठीक है. So DE है हमारे पास अभी. Then after we will remove D. Okay, and add F. So last में क्या बचता है? EF, right? तो goal is F. Very good. ठीक है. बट हमें जब हमने D रिमूव किया तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर क्या बोल रहा था? DE. ठीक है. सो EF मिल रहा है हमें. EF. ठीक है. इन दैट केस वी रिक्वायर टू रिमूव E ऑल्सो. क्लियर? E को भी तो रिमूव करना है ना. ठीक है. और उसके बाद हमें F मिल रहा है. क्लियर? ठीक है. सो नाउ एक बार देख लेंगे हम लोग के कैसे काम हो रहा है. तो A हमने ऐड किया, उसके बाद A को निकाला, BC ऐड किया, B को निकाला, CD, देन C को निकाला, DE, फिर यहाँ पे FE भी निकाला और F. एंड दिस इज माय गोल स्टेट. एवरी टाइम आई एम चेकिंग फॉर द गोल स्टेट. क्लियर? सो नाउ अगेन वी विल गो फॉर द रिवर्स एंड वी विल चेक फॉर द पेरेंट. सो E का F का पेरेंट क्या है? E. उसके बाद सीधा क्या आएगा? C. उसके बाद A. तो ये रूट हमने लिया है. A, C, E, F. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हमने E A वाला रूट लिया है क्योंकि इसके डायरेक्ट E से हमने F में गए हैं. ठीक है, इसलिए. क्लियर हुआ? सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड यू रिक्वायर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, सो यू आर हैविंग दिस data where root node is S. Okay, and your starting node S होगा और goal node आपका J है यहाँ पे J. ठीक है, तो S से J कैसे जाना है वो आपको देखना है. Justine ma'am, why C was not inserted first but B was added? Okay, हाँ. ओके जस्टिन, जस्टिन का क्वेश्चन बहुत अच्छा है. उसने बोला है कि व्हाई वी हैव एडेड लाइक BC एंड नॉट CB. वेरी गुड. ठीक है. सो हियर whenever you are adding any node you require to stick with the one pattern. क्लियर? हम एक पैटर्न को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे. सो इफ यू आर फॉलोइंग द पैटर्न लाइक CB, सो नेक्स्ट टाइम ED होगा. समझ में आया आपको? ठीक है. सो आपको उस हिसाब से पैटर्न को आपको पीछे से लेना है कि आगे से लेना है वो देखना है. पर जनरली इफ यू रिफर एनी रेफरेंस बुक, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द राइट हैंड साइड. क्लियर जस्टिन? वो हमेशा राइट हैंड साइड से होता है. बट अगेन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से भी करना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड को ही हर बार लेना है. फिर देन यू विल गेट द राइट कंक्लूजन. क्लियर? ठीक है. ओके, सो दिस इज द breadth first algorithm. Now we will check the complexity of this breadth first algorithm. Now complexity purpose we will use some variables. Okay, yes. अखिलेश पांडे का कहना है कि मैम पाथ इज A B D F B हो सकता है. हाँ, हो सकता है.
हो सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज देयर, ओके, बट वो वही हुआ कि आप लेफ्ट हैंड साइड से लोगे तो ये वाला पाथ आ जाएगा, ठीक है। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कोई ह्यूरिस्टिक फंक्शन नहीं है कि विच इज गिव यू मिनिमल कॉस्ट, ठीक है। हम यहाँ पे इक्वल कॉस्ट कंसिडर करके चल रहे हैं, क्लियर। जब हमारे पास ऐसा डेटा मिलेगा कि नाउ टू गो फ्रॉम दिस पाथ, आपके पास दो ऑल्टरनेटिव पाथ है और वो पाथ में से ये पाथ ज्यादा बेटर है बेस्ड ऑन दिस टाइम एंड कॉस्ट, okay, then you have alternative to choose, okay, so that is there, वो आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में जो पाथ आता है वो आपको लेना है, ठीक है। नाउ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हाउ मेनी पाथ्स नोड्स और लेयर्स रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स हियर, ओके। और उसके हम कुछ वेरिएबल यूज कर रहे हैं। द वेरिएबल बी इज योर ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्री देन द ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ दिस ट्री इज 2। कैसे 2 हुआ? तो नाउ ब्रांचिंग फैक्टर मीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच इन अ ट्री। तो यहाँ पे हर एक की ब्रांच कितनी है? 2। ईच एंड एवरी नोड इज हैविंग 2 लीफ नोड, ओके। नाउ सपोज सम ट्री इज हैविंग लेट्स से 3 लीफ नोड, तो यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 3, okay. So whatever the maximum number of branches there in the tree that you require to accept, okay. So that is what the B maximum branching factor, then M maximum depth of the state space, okay. Maximum depth मतलब क्या हुआ? ये layer कौन से लेवल पे हम लोग? 0 लेवल, 1, 2, मैक्सिमम कितना है? 4, क्लियर। सो वो आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है, मैक्सिमम लेवल एंड डेप्थ ऑफ द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन। सो लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि मैं अगर यहाँ पे E इज माय गोल, फॉर एग्जांपल E इज माय गोल, ओके। तो अगर E मेरा अगर गोल है तो मुझे कितनी डेप्थ तक जाना होगा? दैट मिनिमम कॉस्ट डेप्थ इज 2। क्लियर हुआ सबको ये? सो दैट इज 2। क्लियर एवरीवन? तो वो वेरिएबल आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। सो नाउ वी विल चेक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ऑल दिस breadth first and breadth first algorithm. The first one is completeness. Yes, the algorithm is complete, which means what? At any point of time it will give you solution, okay, because end of the day breadth first will traverse होल ट्री एनी टाइम, ठीक है। तो पूरा ट्रैवर्स कर रहा है तो वो वाला जो गोल्ड स्टेट है वो तो कभी ना कभी तो मिलेगा। एंड वर्स्ट केस इज व्हाट? दैट द सिस्टम हैज टू ट्रैवल ऑल द स्टेट्स, दैट इज द वर्स्ट केस, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है द नंबर ऑफ नोड ट्रैवर्स in the BFS, okay. So now here we will check for the worst case, and the first case is order of B raised to D. So and here D is equal to M, okay. So B raised to D का मतलब क्या हुआ वो हम लिखते हैं। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ जैसे मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, the time complexity of any graph is order of V plus E. V means vertex and E means edge, okay. This is the time complexity for any graph in the data structure. But if we are talking with the AI language, तो AI language में क्या होगा? तो ये हो जाएगा order of branching factor raised to depth, ठीक है। So now we will again go for the tree, okay. Now suppose E is my goal state, please everyone concentrate, E is my goal state। तो यहाँ पे हमें मिनिमम कितना ट्रैवर्स करना पड़ेगा? तो मिनिमम कितना ट्रैवर्स करना पड़ेगा? सो B is my branching factors। तो यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स? ब्रांचिंग फैक्टर, यस एनीवन? 2, very good. So branching factor means maximum number of branch or you can say leaf node, okay. तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सबका ही 2 है तो हमने 2 लिया है। सपोज किसी एक का 4 ब्रांच होगा तो हमें 4 लेना है। समझ आया सबको?
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्रांचिंग फैक्टर 2 है, मतलब b इज इक्वल टू 2। ओके, d क्या है यहाँ पे, तो डेप्थ क्या मिलेगी हमें, तो d इज माई दिस, e इज माई गोल स्टेट। ठीक है, तो उस केस में मेरा d क्या मिलेगा मुझे, यस एनीवन, डेप्थ क्या है, ये लाइन में डेप्थ क्या है, 2, वेरी गुड। सो नंबर ऑफ एजेस जो हम कवर करते हैं, तो ये और ये एज, 2 एज कवर करनी पड़ेगी, इसलिए नंबर ऑफ डेप्थ हमारी यहाँ पे है 2। सो एंड माई फॉर्मूला इज b रेस टू d, 2 रेस टू 2, इट मीन्स मिनिमम 4 जो है वो आपको कवर करना पड़ेगा, 4 सर्च करना पड़ेगा तो ही आपको वो मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये सर्च कर रहे हैं, 1 2, ठीक है, 3 4, चौथे 5वें में तो मिल ही जाएगा आपको ये, ठीक है, क्योंकि यही लेवल पे है। पहली बार एस के साथ हमने ए बी सर्च किया, फिर ए के अंदर हमने सी डी सर्च किया और बी के अंदर ई सर्च किया। सो 4 और लेस देन 4 ट्रावर्स में यू आर गेटिंग द गोल स्टेट। क्लियर हुआ सबको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एंड इन वर्स्ट केस यू विल गेट b raised to m, and that is what maximum number of level, that is 4. So 2 raised to 4, 16 is the maximum level of the data you require to traverse. Clear हुआ सबको ये कैसे आया? ठीक है, now at the same time, अच्छा यहाँ पे b raised to d ही है, ये d plus 1 जो है वो so space complexity is what? Space means memory. Okay, so here again we require to store, अगर हम memory की बात करते हैं, and each and every data structure we can use linked list. There are so many data structure available to store the data. Okay, so tree structure को अगर store करना है तो यहाँ पे space complexity कितनी लगेगी? तो in the worst case again b raised to d, where d is equal to m. m is maximum level. तो इतनी space लगेगी आपको, इतने node को आपको store करना है। Clear हुआ? ठीक है, so that is what the space complexity. Optimality is there, yes, optimality is there. If the cost is 1 per step, as I told you, here we are not using any heuristic function, so we don't know about the real cost of that age. Okay, so we are considering each and every age cost is equal to 1, and that's why we are getting the optimal solution over here. ठीक है, but in general अगर हम बात करें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बिकॉज आइडियल केस, in ideal case, if it is ideal case, then only all the ages are having cost is equal to 1, but in real environment we are not having this type of things. Okay, maybe possible cost and distance cost is different for each and every ages. Okay, and that's why in general we are not getting the optimal solution, but in ideal case we are getting. Clear everyone? So property of breadth first algorithm, what is breadth first algorithm and how we require to calculate it. Clear? Any doubt with the breadth first algorithm, students? Yes. Okay, so यहाँ पे हम लेसन क्या लर्न कर रहे हैं, लिमिटेशन क्या देख रहे हैं यहाँ पे? So limitation is the memory required are very big, because we don't know where is our goal state is. Okay, and that's why we require to store the whole tree in the memory. Exponential complexity search problem cannot be solved by uniform method, because अगर हमारा छोटा search है, अगर domain space या problem state की बात करें तो वो state कम है तो हम इसको use कर सकते हैं, otherwise based on the time and space complexity it is very difficult to use this type of problem. Okay, this type of solution. Okay, so now we are having another algorithm, again this is uninformed search algorithm, which is called depth first algorithm. Okay, so depth first में, as I told you, this terms itself says now here we will traverse in depth. ठीक है, पहले हम breadth wise traverse कर रहे थे, अभी हम depth wise करेंगे. Clear हुआ सबको ये? ठीक है, तो depth first search is a recursive algorithm for traversing a tree or graph data structure. It is called the depth first search because it starts from root again and follow each path to its greatest depth. It means what? When it will start with S, it will go for E, A, and then for C and D.
ठीक है। सी के बाद डी में भी इसलिए जाएगा क्योंकि सी के पास अभी नीचे जाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो उसके पेरेंट के नेबर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो बी में जाएगा, फिर ई, फिर एच, फिर आई, फिर एफ, जे, जी। क्लियर हुआ ये? ठीक है। तो ऐसे डेप्थ में वो पहले ट्रावर्स करेगा। नाउ द डेटा स्ट्रक्चर वी आर यूजिंग फॉर दिस इज स्टैक। नाउ व्हाट इज दिस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? एनी एग्जांपल स्टूडेंट्स? यस, डेटा स्ट्रक्चर का कुछ एग्जांपल बताओ। बंच ऑफ प्लेट, वेरी गुड, ओके। और set of disk, okay, very good. Deck of card, very good. Okay, so these are all stack data structure. Now the two important element in the stack data structures are, yes, anyone? Push and pop, very good, Nisha, Akhilesh. So push and pop, it means what? Now you think about the deck of card, okay, and the rule is you cannot take card in from in between, okay. जब भी आप कार्ड को लेना है तो आपको कैसे लेना है? कार्ड को ऊपर से लेना है, और अगर आपको कार्ड ऐड भी करना है तो ऊपर से ही ऐड करना है। समझ में आया अभी? तो निकालना भी ऊपर से ही है और रखना भी ऊपर ही है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट पुश एंड पॉप, ओके। सो अगर आप सीडी रैक की बात करते हो तो सीडी रैक है, तो सीडी रैक में कैसे होगा? एक के बाद एक ही सीडी निकाल सकते हैं, और अगर जब डालेंगे तो भी ऊपर से ही डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लीफो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर हुआ सबको? जो लास्ट में ऐड हुआ है वो पहले निकलेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज। तो नाउ वी विल सी द प्रोसेस इज सिमिलर टू दिस BFS. The algorithm is push the starting node into the stack. ठीक है। तो पहला वाला हम स्टैक को हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग नोड को हम स्टैक में डाल रहे हैं। नाउ सपोज स्टार्टिंग नोड है ही नहीं तो स्टॉप करना है। अगर हमारा जो टॉप नोड है वही गोल नोड है तो वहां पे भी स्टॉप कर देना है, ठीक है। सपोज हमने रूट नोड डाला और वही गोल है तो वहां पे स्टॉप कर देना है। Else pop the top node from the stack, process it, check for the goal, and if it is not there, then check all the neighbors that are ready, push them in the stack. सेम बात करनी है यहाँ पे। क्यू में हम क्या करते थे? स्टार्टिंग से रिमूव करते थे और एंड में ऐड करते थे। यहाँ पे आपको क्या करना है? एंड से ही रिमूव करना है, एंड से ही ऐड करना है। क्लियर? हाँ, सेम। और वो करते जाना है। कब तक करते जाना है? जब तक कि आपको यू नॉट अचीव योर गोल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द DFS algorithm is. Now the advantage is what? DFS required very less memory, as it's only need to store a stack of the node on the path from root to the current node, ठीक है। रूट से करंट नोड में ही नीचे जाना है तो उतना पार्ट वो स्टोर करता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसको पूरी इसकी मेमोरी में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने पार्ट पे वो काम कर रहा है उसी को उसको स्टोर करके रखना है, क्योंकि वही वो खत्म करके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए उतना मेमोरी स्टोरेज कम लगेगा। It takes less time to reach to the goal node than BFS. How? If it travels in the right direction. Okay. So अगर हम वापस से उसकी बात करते हैं तो suppose for example let's say D is my goal node. Okay. D की जगह पे हम लोग H रखते हैं। H is my goal node. ठीक है। तो H अगर आपका गोल नोड है, ठीक है, सो डेप्थ फर्स्ट एल्गोरिथम में क्या होगा? तो S विल गो फॉर A से C, फिर D, फिर B से E और उसके बाद H। तो सीधा ये आ गया। ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको F को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर हुआ? इसको ट्रैवर्स नहीं किया आपने, उससे पहले ही गोल मिल गया है। ब्रेथ फर्स्ट में क्या होगा? आप ए बी ट्रैवर्स करोगे, ये 4 ट्रैवर्स करोगे, फिर एच को ट्रैवर्स करोगे। क्लियर? सो वहां से यहाँ पे आपको जल्दी मिल सकता है रिजल्ट, बट इफ यू ट्रैवर्स इन द राइट डायरेक्शन। ओके। नाउ डिसएडवांटेज क्या है?
there is the possibility that many states keep reoccurring and there is no guarantee of finding the solution. That is possible. Now, how it is possible? When we are having this infinite number of nodes. Okay. Now, let's say my goal is, let's say, E. But here I am having, let's say, infinite levels. Okay. ये बाजू मेरे पास infinite level है और यहाँ पे second level में ही मेरा क्या है, गोल है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो उसी को ट्रैवर्स करता रहेगा. And if you have not converted this graph into tree, then maybe possible some circular path is there and you are getting the same state again and again. Okay, so वो मिल सकता है यहाँ पे. तो इसके लिए ये क्या करेगा, यहाँ पे वो उसी में घूमता रहेगा और इसको ये नहीं मिलेगा. और सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये इनफाइनाइट पाथ में चला गया तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिले. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. नाउ यू थिंक अबाउट द बिगर problem like Google search. Okay, now in this Google search the tree is very huge. Okay, इतना ह्यूज है कि उसके लिए मतलब पेटाबाइट जितनी मेमोरी लगेगी वो ट्री को स्टोर करने के लिए. ठीक है. तो उस केस में आप सोचो कि अगर वो इस वाले रास्ते में चला जाता है तो ये वाले गोल पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा. ठीक है. सो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ DFS. So no guarantee of finding the solution first of all, and it may go to the infinitely. So that is possible. Now we will see the example. Now suppose we are having this particular particular tree where the root node is A and M is the goal state. Okay, तो हमें क्या करना है, M को चेक करना है and the data structure we are using is last in first out, that is tag. Okay, so now every time we require to check for the goal. So A कहाँ पे जाएगा सबसे पहले, B में check for the goal, no. Then D में जाएगा, फिर H में जाएगा, फिर I में, फिर E के नीचे. ठीक है. फिर G में, G के नीचे और फिर M में. समझ आया सबको. सो वो पूरे ट्री को पहले खत्म करता है फिर वो दूसरे. सो इट विल ऑलवेज गो लेवल वाइज. ठीक है. वो लेवल वो नीचे के पहले लेवल तक चला जाता है, फिर सेकेंड ब्रांच में आके उसके नीचे के लेवल में, फिर सेकेंड ब्रांच में, नेक्स्ट ब्रांच में आके उसके नीचे तक जाएगा. समझ आया सबको ये कैसे काम करता है. एवरीवन पुश एंड पॉप करना है. ठीक है. सो नाउ वी विल डू दिस एग्जाम्पल. Let us take this example where we are implementing DFS. Consider A as the root node and L as the goal. तो L मेरा क्या है, यहाँ पे गोल है, और मेरा रूट नोड क्या है, A. ओके. सो सबसे पहले क्या होगा हमारे डेटा स्ट्रक्चर में, A. वेरी गुड. अब आपको क्या करना है, A को रिमूव करना है और ऐड क्या करना है, नॉट ओनली B, उसके सारे नेबर्स. तो नेबर्स कौन से हैं, वेरी गुड, B एंड C. ठीक है. अब आपने B और C को ऐड किया है. ठीक है. B एंड C को ऐड किया है. अब आपको क्या करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. यस, लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा, रिमूव B एंड ऐड DE. नहीं, लास्ट इन, लास्ट मतलब C को आप रिमूव करोगे ना. हाँ, तो C को रिमूव किया और आप क्या डालोगे अभी इसके अंदर, DE नहीं. हाँ, ओके. यहां पे देखो सब लोग, सबसे पहले हमारे पास A नोड है. ठीक है. अब जैसे मैंने बात की थी कि आप B C भी डाल सकते हो, C B भी डाल सकते हो. ठीक है. हमने क्या डाला है, B C डाला है उसका नेबर. तो A को रिमूव किया और B और C ऐड किया. क्लियर हुआ यहां तक सबको. ठीक है. अब आपको क्या करना है, लास्ट जो भी डाला है, C जो डाला है उसको रिमूव किया तो C के नेबर को ऐड करना है, पुश करना है. सो C के ये नेबर कौन है, FG, उसको पुश करेंगे ना. समझ आया अभी.
अब मैंने जो आपको पहले एग्जाम्पल बताया उसमें हमने क्या किया था, बी सी की जगह पे सी बी डाला है, इसलिए वो बी वाले ब्रांच में जा रहा है। समझ में आया? और यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है बी सी। ठीक है, तो बी सी लिया है तो कैसे जाएगा अभी वो, तो सी जो है वो पहले रिमूव करना है, लास्ट इन हुआ है उसको रिमूव किया, और फिर हमने क्या डाला, एफ जी। फिर एफ जी में से जी को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो यस अभी वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ए, देन आफ्टर बी, बी एंड सी। सो ए को रिमूव किया और बी एंड सी इज देयर इन द डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अभी बताओ क्या आएगा नेक्स्ट, रिमूव सी and you are adding, okay, so after adding fg what will be there in the data structure, data structure में क्या आएगा, bfg, very good, so bfg is there, so now what we will do, we will remove g, very good, Sonia, Akanksha, very good. So now if we are removing G, what we require to add? M. So now, very good. So what will be there in the data structure now? BFM. Very good. BFM आ गया अभी, क्योंकि यहाँ पे FG था, G को रिमूव किया तो M डाला, तो B, F और M अभी डेटा स्ट्रक्चर में है। ठीक है, now what we require to do now? We pop M. But there is no neighbor, so now my data structure will be BF. Clear? Clear? क्योंकि M के बाद नीचे कुछ भी नहीं है, तो मेरा डेटा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, BF. क्लियर हुआ सबको? There is nothing in after M, तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा BF. ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरा डेटा स्ट्रक्चर मिल रहा है BF. क्लियर? So now next में क्या करेंगे, अगेन we will pop, वेरी गुड, F. अब आपने F अगर रिमूव किया है तो आपको ऐड क्या करना है, L एंड K. वेरी गुड अखिलेश. सो अगर हम K और L को ऐड कर रहे हैं तो व्हाट विल बी देयर इन द डेटा स्ट्रक्चर नाउ, BKL. वेरी गुड. सो नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, रिमूव L. वेरी गुड. रिमूव L करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, L को पॉप कर लिया. नाउ वी रिक्वायर टू स्टॉप, वी आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर द गोल एंड वी हैव अचीव्ड द गोल, राइट? हाँ सोनिया, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, L जैसे ही रिमूव करते हैं वी आर मैचिंग विद द गोल एंड इफ गोल रीच्ड वी स्टॉप. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे. समझ आया? तो अगेन हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, A जो है वो डेटा स्ट्रक्चर में लिया, उसके बाद क्या किया, A को रिमूव किया, B और C लिया है, फिर C को रिमूव किया, पीछे ही देखना है सिर्फ हमको, C को रिमूव किया, F और G यहाँ पे लिया, फिर G को रिमूव किया, M लिया है यहाँ पे, फिर हमने क्या किया, M को रिमूव कर दिया, बट देयर इज नथिंग इन द आफ्टर M, तो हम B और F ही की तरह रहेंगे. फिर F को रिमूव किया, K एंड L, सो BKL. आफ्टर BKL L को रिमूव किया एंड दिस इज द गोल. ठीक है, अब जब आप L को रिमूव करते हैं, सो नाउ व्हाट विल बी द पेरेंट नोड ऑफ L, दैट इज F. F का पेरेंट नोड क्या है, C. ठीक है ना, और C का पेरेंट नोड है A, तो ACFL दिस इज द पाथ. सॉरी, सो दिस इज द पाथ ACFL. क्लियर हुआ सबको? हाँ, ठीक है, तो ये पाथ को हम लोग फॉलो करेंगे. ठीक है, नाउ यहाँ पे भी हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो हम मैक्सिमम
जो मिल रहा है उसके हिसाब से देखेंगे कि वर्स्ट केस क्या होगा। तो सिमिलर वर्स्ट केस वी आर गेटिंग ओवर हियर ऑल्सो, बी रेज टू डी, जितने भी ब्रांच है और जितने भी डेप्थ है उतना हमें सर्च करना पड़ेगा इन वर्स्ट केस। Okay, and in worst case we require the same space also. Okay, and optimal, there is no optimal solution over here. It may find the non-optimal solution first. Okay, अगर वो डेप्थ में जाके अगर उसको कोई solution मिल रहा है जो उसको ब्रेथ फर्स्ट में मिनिमम लेवल पे मिल रहा था, उसकी जगह पे उसको डेप्थ में जाने के बाद मिल रहा है, तो वो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लॉन्ग पाथ में कन्वर्ट होगा. सो नो, देयर इज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च. क्लियर हुआ? ये दो टॉपिक हमने किए आज, डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और उसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. ठीक है? एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ स्टूडेंट्स? Yes, any problem? Okay, so I'm giving you this form, a continual assessment, unit 1 AI. Before 5 o'clock you required to fill this. Okay, the basic introduction of artificial intelligence questions, MCQ questions are there in the form. Okay, so just attempt this quiz, everyone. And if you don't have any question, then please write down your roll number in the chat box. And please share this link in your unofficial group also, so everyone can attempt this. I will also upload this link in classroom. Okay. Hello, ma'am. Yes, Smriti. 80 roll number has some network issue, so can I? Yes. 80. Yes. आइडियली 80 ने अभी तक लेक्चर अटेंड किए ही नहीं है. 80 मैक्सिमम एब्सेंट है. Okay, now the important thing is continual evaluation or assessment quiz attempt करना क्यों जरूरी है. Now suppose in internal exam you are getting, let's say, 20 out of 20. Okay, and you have not attempted continual assessment questions, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस असेसमेंट में जो भी आपके एवरेज मार्क आते हैं, जैसे 5 यूनिट है और उसके 5 हम क्विज लेते हैं, तो वो 5 क्विज के जो एवरेज मार्क है वो और आपके इंटरनल के जो मार्क्स आते हैं, वो दोनों का एवरेज आके आपका फाइनल टर्म वर्क मार्क बनता है. तो यहाँ पे आपका 20 आ गया और वहां पे 0 है, तो आपका स्ट्रेट अवे कितना हो जाएगा, 10 एज अ टर्म वर्क मार्क. क्लियर हुआ सबको? एंड दैट्स व्हाई दिस कंटिन्यूअल असेसमेंट क्विज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट. क्लियर? ठीक है, तो सबको अटेम्प्ट करना है बिफोर 5. आफ्टर दैट आई विल क्लोज दैट जो भी आप सबमिट कर रहे हो फॉर्म, वो सबमिट नहीं होगा फिर बाद में. ठीक है, मैं रिस्पॉन्स क्लोज कर दूंगी. ठीक है, सो आई होप एवरीवन हैज रिटन देयर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स. ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे. Thank you everyone.